Hello, class 7th. I hope you all are well and enjoying learning the concepts of science with me, Chinmay Kaushal. So, once again, welcome to this video that is about chapter number 12 of class 7th. The name is electric current and its uses. तो बेटा इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं the form of energy, that is the electrical energy. Electrical energy, when passes through an electric conductor, is known as electric current, or then when it passes through an conductor, it produces a heating effect, the magnetic effect. तो ये सब चीज़ें हमें इस चैप्टर में हमें बात करनी है कि how the electricity serves us in our daily life, what are the various instruments जो जिस पे ये वर्क करती है, किस तरह से हमारे हाउस होल्ड जो हमारे जो इलेक्ट्रिकल जो सेटअप्स हैं वो किस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं. तो दिस इज ऑल वी हैव टू डिस्कस इन दिस चैप्टर. आई होप आपको पढ़ने में मज़ा आएगा. तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. So students, electricity is the form of energy. Whenever it passes through a conductor, it is known as electric current. Electric current, basically it is the flow of the charged particles through an electrical conductor, and its unit is ampere. It is measured in ampere. हम बोलते हैं कि इतने एम्पियर का हमारे पास करंट है. तो it is of this form of energy is of utmost importance in the progress of a country nowadays. तो देखते हैं हम किस किस तरह से what are the various components that are used in an electrical circuit. आपने you also have studied about the electricity and the electrical circuit in previous class. तो वही चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं. तो components of circuit क्या क्या होने वाले हैं बेटा. फर्स्ट थिंग इज द बैटरी, दैट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. कहाँ से हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है. सो इन द बैटरी द केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और फिर हम उस बैटरी को यूज करते हैं टू रन द इलेक्ट्रिक करंट. और उस रन करने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रन करने के लिए हमें चाहिए होता है एक ऐसा सब्सटेंस जिस विच अलाउज द passes of the electrical current through itself, that is known as the conductor. कंडक्टर बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, मेटल के होते हैं, और ये अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को पास होने के लिए. दूसरी चीज उसके बाद होती है कि हमने क्या उसमें कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज किया है, कि वाई व्हाट इज द मोटिव ऑफ द सेटअप ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट. हमने क्यों सेटअप वो किया है, कि हमें कोई बल्ब जलाना है, हमें फैन चलाना है उससे, कि तो फॉर दैट वी यूज एन इलेक्ट्रिकल सर्किट. तो ये जो इलेक्ट्रिकल सर्किट हमारे पास होते हैं, दीज आर ऑफ टू टाइप बेसिकली, द series series combination, and the parallel combination of the electrical appliances. So this we have to discuss in this chapter. तो basically बेटा sources of electrical energy हमारे पास क्या है, बैटरी होगा. कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें सर्किट के, तो हमारे पास बैटरी होती है, दैट इज द सोर्स, और फिर कंडक्टर, और फिर हम उसमें कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हमारा ऐड करते हैं. नेक्स्ट, now let's discuss the various ways in which electricity serves us. So students, most common use of electricity is heating and lightening our home appliances. So first thing is lightning. It illuminates homes, streets, workplaces, electricity. Second and the very important thing is it produces a heating effect. So heating effect of electricity is used in home appliances, various places like power heaters, ovens, stoves, है ना. And the third thing is powering devices, like you operate fans, computer and appliances. So these are the various ways in which electricity serves us. और बेटा बहुत ही important चीज़ है इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे लिए. तो बढ़ते हैं इसमें आगे, देखते हैं क्या how we let's have a look at the heating effect of current. Now the heating effect of current, students, when you switch on a table lamp, it gives out light energy, and you must have observed कि जैसे ही आपने कोई बल्ब या कोई लाइट को आप ऑन करते हैं, तो आफ्टर सम टाइम यू फील द हीटिंग इफेक्ट. तो ये कैसे हो रहा है, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द लाइट एनर्जी एज वेल एज इनटू द हीट एनर्जी ऑल्सो. तो दिस इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. उसका क्या होता है बेटा, बल्ब में, इलेक्ट्रिकल बल्ब में एक फिलामेंट लगा होता है. जब आप उसको क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इट लाइट्स अप. तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी वो लाइट एनर्जी में चेंज हुई, और इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस
the heating effect. So this is the heating effect of current, and there are various applications of heating effect of current, like appliances we use. हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल हीटर यूज करते हैं, और ओवंस यूज करते हैं, टोस्टर यूज करते हैं। और उसमें बेसिकली क्या होता है बेटा, रूम हीटर्स में बेसिकली क्या होता है, एक उसमें एक कोयल लगी होती है ना। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व कि देयर इज सम कोयल जो हीट हो रही है। आप एज यू आल्सो कैन सी हियर, है ना, दिस इज द पिक्चर ऑफ एन इलेक्ट्रिकल हीटर। यहाँ पे हीटर है, तो यहाँ पे ऐसे एक कोयल लगी रहेगी, है ना। तो जैसे ही हम इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, इट स्टार्ट हीटिंग, है ना, लाइट अप होता है, और धीरे धीरे इट प्रोड्यूसेस द हीटिंग इफेक्ट। तो ये कैसे करता है, तो ये कोयल जो बेटा इसमें लगी रहती है, दिस इज मेड अप ऑफ, जनरली मेड अप ऑफ नाइक्रोम वायर। नाइक्रोम वायर की होती है। और इसका क्या, नाइक्रोम की ही क्यों है, क्योंकि बेटा क्या है, देखिए इसका क्या होता है, बहुत, इट हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। जल्दी से मेल्ट नहीं होगा, बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा तब जाके मेल्ट होता है। तो द कोयल इज मेड अप ऑफ नाइक्रोम दैट हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, और इसका हीटिंग इफेक्ट बहुत अच्छा होता है ना। तो दिस इज द थिंग। और ये जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है, इसकी वेरियस एप्लीकेशन हम देखते ही हैं। और व्हाट आर द प्रिकॉशंस यू नीड टू टेक व्हेन एवर यू यूज इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। तो बेटा मैं आपको कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या करना है बेटा, कि डू नॉट प्ले विद इलेक्ट्रिसिटी, इट मे गिव यू इलेक्ट्रिक शॉक विद विच मे बी फेटल। आपके लिए जानलेवा हो सकता है बेटा ये। इट इज एडवाइजरी, दीज आर द थिंग्स। सेकेंड थिंग, डू नॉट लीव द स्विच ऑन व्हेन द गैजेट इज नॉट इन यूज। आपको पता है बेटा कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के हमारे पास क्या क्या तरीके हैं। वी हैव सम नेचुरल रिसोर्सेज थ्रू विच वी प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी को अगर हम वेस्टेज करेंगे, उनका इलेक्ट्रिसिटी का वेस्टेज करेंगे, तो दैट इज नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि अल्टीमेटली ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को हार्म कर रहे हैं, है ना। दे दे आर नॉट इनएग्जॉस्टिबल, है ना, दे आर एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, हमने पहले भी पढ़ा है ना। और एक चीज और, थर्ड पॉइंट जो यहाँ पे है, कि नेवर टच इवन इंसुलेटेड वायर और केबल विद बेयर एंड वेट हैंड। बेटा उसमें करंट हो सकता है, एंड इट में हार्म यू, तो आप, यू आर एडवाइज नॉट टू टच द वायर इवन इफ इट इज insulated. So next point is, while fixing an appliance, better wear rubber soled shoes and stand on a wooden plank on a rubber sheet. ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि जब आप यूज कर रहे हो ये सब चीजें, तो कोई क्या करें, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जब आप यूज कर रहे हैं, तो यू आर एडवाइज टू वियर द रबर सोल्ड शूज, जिससे क्या हो, यू डू नॉट गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक। तो बेटा ये दीज आर द थिंग्स आपको याद रखना है। और एक पॉइंट, नेवर टच अ लाइटेड और इवन फ्यूज्ड इलेक्ट्रिक बल्ब विद बेयर हैंड। बेटा वो गर्म हो सकता है, आपको हार्म कर सकता है। नाउ, तो दिस इज द ईटिंग इफेक्ट। नाउ टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज द फ्यूज। अब देखते हैं फ्यूज क्या, एक टर्म हमारे सामने आ रही है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज द फ्यूज। अब ये फ्यूज क्या होता है बेटा, फ्यूज इज अ डिवाइस दैट इज प्रोवाइडेड ऑन लाइन ऑन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इन होम एंड अप्लायंसेस। तो ये फ्यूज क्या होगा बेटा, इट इज बेसिकली a piece of wire which has a very low melting point. अब देखिए क्या है, हम इसको इस तरह से सेट करते हैं बेटा फ्यूज को, कि क्या होगा, कि जैसे ही अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट या एक लिमिट से ज्यादा हो रहा है, करंट वहां से पास हो रहा है, तो इट विल ब्रेक डाउन, एंड इट विल ब्रेक डाउन द एंटायर सर्किट। तो उससे क्या होगा, द पैसेज ऑफ द करंट, इलेक्ट्रिसिटी स्टॉप्स। जैसे ही ये फ्यूज हमारा ब्रेक होता है, तो हमारा एक प्रोटेक्शन डिवाइस होता है फ्यूज, जिसको हम सेटअप करते हैं अपने इलेक्ट्रिक सर्किट में। यू कैन सी हियर द वेरियस काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिकल फ्यूजेस हियर, आप देख पा रहे होंगे, दीज आर द सिंबल्स वी यूज जनरली फॉर अ फ्यूज। और ये जो फ्यूज है हमारे अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं। तो वेरियस काइंड्स ऑफ फ्यूज आर द ग्लास फ्यूज, द कार्ट्रिज फ्यूज एंड रीसेटेबल फ्यूज। हम इनको रीसेट भी कर सकते हैं, जैसे कि आप अपने घरों में भी देखते होंगे कि आप इलेक्ट्रिकल जो सेटअप्स हैं वहां पे फ्यूज का यूज करते हैं। सो दीज आर द, इट इज अ प्रोटेक्शन डिवाइस वी यूज इन आवर होम on electrical appliances. Now, after the study of heating effect of current, now the next is the magnetic effect of current. Students, it is also very important effect of electric current. तो देखते हैं इसमें क्या, it is basically क्या होता है इसमें, कि it is the production of the magnetic effect अराउंड एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर। जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं हम किसी कंडक्टर से,
तो बेटा इट इज ऑब्जर्व कि उसके आसपास कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट हमें देखने के लिए मिलता है, एक फील्ड क्रिएट हो जाता है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। और इट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय अ डेनिश साइंटिस्ट जिसका नाम था ओरेस्टेड। ओरेस्टेड साहब ने ये पहले देखा कि व्हेनेवर अ magnetic compass is placed in a zone नियर एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर, तो वहां पे डिफ्लेक्शन देखने के लिए मिला उन्हें कंपास में। तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट उन्होंने ऑब्जर्व किया कि किस तरह से एक फील्ड वहां पे क्रिएट हो जाता है, तो जिसको उन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इस इफेक्ट को उन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, कि जब हम किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो उसके पास एक फील्ड जनरेट हो जाता है जहाँ पे हमें मैग्नेटिक इफेक्ट देखने के लिए मिलता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और ऐसे डिवाइस जब हमने इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास की और मैग्नेटिक इफेक्ट वहां पे देखने के लिए मिला, वो हमारे जो कंडक्टर जो हमारा है वो दैट बिकम्स क्या बन जाता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बन जाता है। अब देखिए क्या करना है इसमें। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे राइट हैंड रूल। अब ये रूल क्या है, राइट हैंड रूल, इट इज यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को देखने के लिए, बताने के लिए हमारे पास राइट हैंड रूल होता है। बहुत सिंपल रूल है बेटा, क्या करना है आपको, यू हैव टू पुट योर, इस तरह से आप रखेंगे इसमें। क्या करना है, तो आपका जो थंब है, thumb, it is the direction of the current, and the direction of the fingers, it is the indication of the direction of magnetic effect, magnetic field lines हम इनको बोल सकते हैं, या magnetic field की direction हमारी क्या होती है। and the direction of the thumb indicates the direction of the electric current, and the direction of the finger indicates the direction of the magnetic field. So this is the magnetic effect of current, or we use various appliances that works on the magnetic effect of current, जिसमें कि एक हमारे पास क्या होती है, इलेक्ट्रिक बेल भी एक हमारे पास होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बेल हमारे पास होती है। तो देखते हैं उसको। So this is an electric bell beta, this is a diagram of electric बेल डायग्राम, स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक बेल। आप इसमें देख पा रहे होंगे कि बेटा इलेक्ट्रिक बेल यूज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म टू क्रिएट साउंड। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में वो बात कर रही है इलेक्ट्रिक बेल। अब इसमें चीजें क्या क्या यूज होती हैं, वी यूज बैटरी, जिसको हम सोर्स भी बोलते हैं, है ना, सोर्स दैट प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उसके बाद हम एक कोयल इसमें यूज कर रहे हैं। कॉइल हम किस तरह से यूज कर रहे हैं बेटा, जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड, टू जनरेट द मैग्नेटिक फील्ड हम इसमें कॉइल को यूज कर रहे हैं। उसके बाद एक हमारे पास पार्ट रहेगा इसमें आर्मेचर। दीज आर द फोर बेसिक पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल, बैटरी, कोयल, आर्मेचर एंड द बेल। आर्मेचर का काम क्या है, ये कैसे होता है, मेटल आर्म अट्रैक्टेड बाय द कोयल, है ना। आर्मेचर यू कैन सी हियर, दिस इज अ सॉफ्ट आयरन आर्मेचर, है ना, और उसके आगे इट इज कनेक्टेड हैमर। ये हैमर फिर स्ट्राइक होगा बेल पे एंड द साउंड इज प्रोड्यूस। ठीक है, तो सारा सेटअप चला कहाँ से, बैटरी से, सोर्स से चला है, जो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। फिर यहाँ पे ये हमारी क्या है, कोर है, और कोयल हम इसको बोल सकते हैं, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने से क्या हुआ, आर्मेचर, हमारा ये जो आर्मेचर है ये वर्किंग में है, और जो हैमर यहाँ पे लगा है, it strike here on the bell and the sound is produced. So this is the working of an electric bell that works on the electromagnetism or the electromagnetic effect of current. So this is the electric bell. Next is the safety we need to take while using the. Now there are some safety measures we need to take while using the electric appliances in our home or whatever place. तो इसमें बेटा क्या बात है कि ऑलवेज हैंडल इलेक्ट्रिसिटी विद कॉशन, है ना, सेफ्टी के साथ आपको हैंडल करना है सभी चीजों को। नेवर टच एक्सपोज वायर, अवॉइड कॉन्टेक्ट विद इलेक्ट्रिसिटी। आपको बेटा इवन अभी पहले भी बताएगा कि इवन इफ द वायर इज इंसुलेटेड, तो तब भी आपको टच नहीं करना है। द वायर में हैव इलेक्ट्रिक करंट, है ना, तो उसमें हो सकता है। और दूसरी चीज, टर्न ऑफ द पावर बिफोर वर्किंग। आपको चेक करना है, यू हैव टू एंश्योर कि वहां पे कोई भी इस तरह की चीज ना हो जिससे कि आपको कोई एक्सीडेंटल चीज देखने के लिए मिले, ना। टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल थिंग्स इट इज मैंडेटरी टू टर्न ऑफ पावर बिफोर वर्किंग। पहले चेक कर लीजिए कि प्रॉपर वर्किंग में है, कहीं कोई कट तो नहीं है आपकी इलेक्ट्रिक सर्किट में। थर्ड थिंग, यूज प्रॉपर टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, एंश्योर सेफ्टी एंड प्रिवेंट एक्सीडेंट, है ना। तो आप सेफ्टी टूल्स का इस्तेमाल करें, रबर शूज आप पहन के रखें और ग्लव्स पहन के रखें व्हेनेवर यू आर वर्किंग ऑन इलेक्ट्रिसिटी। सो दिस इज द थिंग बेटा,
वी हैव टू डिस्कस, और हमने ये सब इसमें पढ़ा है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और इसी तरह से पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। थैंक यू स्टूडेंट्स।